Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss a very beautiful poem Relic by Ted Hughes. At first in this video, we will discuss key facts of the poem. Then we will discuss the summary of the poem. After that, at last, we will understand the poem line by line in Hindi. लास्ट में इस पोएम को हम हिंदी में समझेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. The Relic is a short descriptive poem by Ted Hughes in which the poet describes the violent nature of the creatures living in the deeps of the sea. The Relic एक short descriptive poem है Ted Hughes की, जिसमें poet describe करते हैं समुद्र के नीचे रहने वाले creatures के violent nature को. Okay, it is a short poem of only 16 lines. It is a poem of modern literature that talks about the metaphorical relics of the sea. ये एक शॉर्ट 16 लाइन्स की एक पोयम है. ये एक मॉडर्न लिटरेचर की पोयम है जो डिस्कस करती है समुद्र के अंदर बचे कुचे अवशेष के बारे में. द वर्ड relic means a person or thing that has survived in an earlier time but is now outmoded or dead. The title of the poem generalized the interest of the poet. In this poem, Hughes explored one of his favorite themes, that is the circle of life and death. Yes, ये टेड ह्यूज का फेवरेट थीम है, the circle of life and death. The poem revolves around the jawbone that the poetic persona or the poet has found from the seashore. ये पोयम एक जॉबोन के इर्द गिर्द घूमती है जो कि पोएट को सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे से प्राप्त होता है या मिलता है. In the poem, the poet describes how creatures who live deep down in the sea prey on one another to survive. इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर रहने वाले जीव एक दूसरे को अपना शिकार बनाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. पोएम contains a total of 3 stanzas. In the first and last, there are 5 lines in each, whereas in the second stanza, there are 6 lines in it. So basically there are only 16 lines in the poem. ये 3 स्टैंजास की एक पोएम है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट के स्टैंजास में 5 लाइन्स हैं जबकि सेकेंड स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं. तो टोटल इसमें 16 लाइन्स हैं. Being a modern poem, there is not a specific verse structure in the poem. It is in free verse. The poet employs a specific rhyme scheme in the poem. The last 2 lines of each stanza rhyme together and form a couplet. इस पोएम में एक स्पेसिफिक राइम स्कीम है और लास्ट की 2 लाइन्स राइम करती हैं और एक कपलेट बनाती हैं. पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पर्सपेक्टिव, मीन्स रिटन एज इफ डायरेक्टली एड्रेसिंग द रीडर. इस पोएम को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम. So, the narrator found a jawbone along with other indigestible remains of living beings. From his perspective, we can see how dark, ruthless the sea is. It is not a place of love and friendship. Instead, it's a place where bloody war of survival is going on. One finds no compassion between creatures here. It's a brutal world. One eats another and other eats them too. And their jawbones can be found on the sea's edge. Those who are not on the sea's edge in the form of a jawbone, they are also not having fun or growing rich in there, but are living life of a continuous struggle. So ये तो हो गई इस पोएम की समरी इंग्लिश में. अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस करेंगे और समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I found this jawbone at the sea's edge. There, crabs, dogfish, broken by the breakers, are tossed to flap for half an hour and turn to crust. Continue the beginning. The deeps are cold. In that darkness, camaraderie does not hold. अब देखिए इस फर्स्ट लाइन में एसिंडेटर नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, जबकि सेकेंड लाइन ब्रोकन बाय द ब्रेकर्स में कॉन्सोनेंस नाम का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है. इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम,
The narrator came across a jawbone and other bones of sea creatures which are obviously dead now, by which he is trying to point out the ultimate fate of every living being on this planet Earth. इस पोयम में पोइट बात करते हैं सी क्रिएचर के एग्जिस्टेंस के बारे में कि वे किस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। अब यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक डॉग फिश और क्रैब को मेंशन किया गया है। अब चलिए इस पोएम की फर्स्ट लाइन को देखते हैं। आई फाउंड दिस जॉबोन एट द सीज एज। सो स्पीकर को सी शोर या समुद्र के किनारे पर एक जॉबोन, कुछ जबड़े की हड्डी या अन्य हड्डियां दिखाई देती हैं जो कि स्पष्ट तौर पर उन जीवों के अवशेष हैं, उन जीवों की हड्डियां हैं जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि जो अब मर चुके हैं। There, crabs, dogfish, broken by the breakers, are tossed to flap for an hour and turn to crust. Continue the beginning. पोइट को वहां पर क्रैब्स और डॉगफिश के भी अवशेष दिखाई पड़ते हैं या मिलते हैं। अब पोइट कहते हैं कि यहाँ पर क्रैब्स और डॉगफिश सभी तरीके के समुद्री जीवों की बॉडी वेव्स द्वारा तब तक प्रभावित की जाती है, यानी कि वेव्स उस पर तब तक अटैक करती है जब तक कि वे क्रस्ट यानी कि पपड़ीदार डिकम्पोजिंग पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। और इसी तरीके से कंटिन्यू द बिगिनिंग, और इसी तरीके से चक्र चलता रहता है, इसी तरीके से जीवन का ये हिंसक चक्र जारी रहता है और जो नए जीवन को होस्ट करेगा या जो नया जीवन देगा। द डीप्स आर कोल्ड। पोइट कहते हैं कि समुद्र गहरा और ठंडा है। मीन्स समुद्र का गहरा पानी ठंडा है, जो कि इस बात का संकेत देता है कि समुद्र की गहराई में लिविंग कंडीशंस बहुत ही हार्श हैं। इन दैट डार्कनेस कैमरेडरी डज नॉट होल्ड। कैमरेडरी मतलब होता है कंपेनियनशिप, और इसकी गहराई में दोस्ती जैसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। स्टैंजा सेकेंड। नथिंग टचेस बट क्लचिंग डिवोर्स एंड द जॉज before they are satisfied or their stretched purpose slacken, go down jaws, go non bare, jaws eat and are finished and the jawbone comes to the beach. This is the sea's achievement. With shells, vertebrae, claws, carapaces, skulls. अब देखिए, नथिंग टचेस बट क्लचिंग डिवोर्स। पोइट कहते हैं कि समुद्र के जीव एक दूसरे को तभी छूते हैं, एक दूसरे को तभी टच करते हैं जब वे एक दूसरे को खाना चाहते हैं। मीन्स समुद्र के जीवों के बीच कोई भी मधुर संबंध नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा संबंध होता है जो संबंध शिकार और शिकारी के बीच होता है। मीन्स समुद्र के जीव एक दूसरे को तभी टच करते हैं जब वो एक दूसरे को खाना चाहते हैं। इस तरीके से उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो शिकार और शिकारी का होता है। एंड द जॉज before they are satisfied or their stretched purpose slacken, go down jaws, go non bare. यहाँ पे slacken मतलब होता है तेजी से घटना, और go non bare मतलब होता है been beaten या खा लिया जाना। यहाँ पर ये go non bare में alliteration या consonance नाम के दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। पोइट कहते हैं कि ऐसे जबड़े जिनका उद्देश्य भोजन के लिए अन्य जानवरों को मारना है, एंड द जॉज, ऐसे जबड़े जिनका उद्देश्य भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मारना है, वे जीवित रहते ही अन्य जबड़ों द्वारा बेयर बोन्स को चबाकर मर जाते हैं। मीन्स वे जीव जो दूसरों से फूड चेन में ऊपर होते हैं, वे अपने से नीचे के जीवों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका शिकार करते हैं, बट लास्ट में वे भी इसी सर्कुलर प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। मीन्स वे भी किसी का भोजन बन जाते हैं या किसी जीव के द्वारा खा लिए जाते हैं। जॉस ईट एंड आर फिनिश्ड एंड द जॉ बोन कम्स टू द बीच। वे जबड़े पहले खाते हैं फिर खाए जाते हैं, फिर समुद्र तट यानी कि सी शोर पर ला दिए जाते हैं। और इसका प्रमाण हम समुद्र तट पर पड़ी हुई हड्डियों को देखकर लगा सकते हैं। दिस इज द सीज अचीवमेंट विथ शेल्स, वर्टेब्री, क्लॉज, स्कैरापेसेस, स्कल्स। पोइट कहते हैं कि यही समुद्र का अचीवमेंट है या कार्य है, या बस बॉडी को या शरीर की हड्डियों या बोन्स को लाइक वर्टेब्रे, स्मॉल हड्डी,
या क्लॉज यानी कि जबड़े या कैरापेसेस यानी कि हार्ड प्रोटेक्टिव शेल्स और जैसे कि लॉबस्टर्स या क्रैब्स के स्कल्स को उनसे अलग कर देती है। मीन्स समुद्र क्या करता है, यह बस शरीर की हड्डियों को शरीर से अलग कर देता है। थर्ड स्टैंजा, टाइम इन द सी ईट्स इट्स टेल, थ्राइव्स, casts these indigestibles, the spars of purposes that failed far from the surface. None grow rich in the sea. This curved jawbone did not laugh, but gripped, and is now a cenotaph. पोएट समुद्र को ऐसे शिकारी के रूप में दर्शाते हैं जो उसमें रहने वाले जीवों का शिकार करता है, और शिकार के बाद समुद्र इन बचे हुए इनडाइजेस्टिबल यानी कि अपच को बीच पर लाकर फेंक देता है। मीन्स ये जो हड्डियां हैं ये इसको ऊपर लाकर फेंकता है, जो कि सड़ नहीं पाती हैं या डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। द स्पार्स ऑफ पर्पसेस मीन्स होता है रिमेन्स ऑफ सी, मतलब समुद्र के बचे हुए अवशेष। दैट फेल्ड फार फ्रॉम द सरफेस, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष में फेल हो जाते हैं, उन्हें समुद्र सरफेस से बहुत दूर यानी गहराई में फेंक देता है। नन ग्रो रिच इन द सी, समुद्र में जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है जिसमें कोई भी क्रिएचर रिच नहीं होता, मतलब कि समुद्र में कोई भी जानवर सुखी नहीं रहता है। दिस कर्व्ड जॉ बोन डिड नॉट लाफ, अब पोएट उस जॉ बोन या उस जबड़े को देखकर कहते हैं जो उनको समुद्र के किनारे मिला है, उसको देखकर पोएट कहते हैं कि ये कभी हंसा नहीं था। मीन्स इस जॉ बोन वाले क्रिएचर को समुद्र से कभी कोई जॉय नहीं मिला था, बल्कि वास्तव में उसने बस काटने का और कटने का ही काम किया था। बट ग्रिप्ड एंड इज नाउ अ cenotaph, मतलब इसने बस काटने और कटने का ही काम किया था और अब यह खुद भी काटा जा चुका है, यानी कि मर चुका है, और अब यह बस एक स्मारक बन चुका है। cenotaph मतलब होता है स्मारक, मतलब अब यह एक स्मारक बन चुका है। So friends, this is all about this poem. If you like this video, then do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get every notifications of my upcoming videos. Thank you for watching this video.